Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the 10th video in the video series regarding ancient history previous year questions of this UPSC CSE preliminary examination from 1995 till 2025. So in this video we will be covering all the questions related to Gupta Empire and its administration. So in my videos I usually give a lot of learning aids, mnemonics and memory connections which will help you learn the information easily. So now the first question, which was asked in 1995, was who among the following anticipated Newton by declaring that all things gravitate towards the earth? ठीक है. सो इसमें वही पूछा है कि न्यूटन से भी पहले किसने बोल दिया था कि ग्रेविटी काइंड ऑफ अ थिंग एग्जिस्ट्स और all the things are attracted towards the earth. So this was said by Brahmagupta. ठीक है, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्ता. Brahmagupta was an Indian mathematician and an astronomer who declared that all things gravitate towards the earth. So he was primarily a mathematician, ठीक है, and an astronomer as well. उनके की वर्क्स क्या क्या थे? एक तो ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत, ठीक है, इट वॉज अ थियोरेटिकल ट्रियटाइज, और द सेकेंड वन वॉज खंड खड्याक विच वॉज अ प्रैक्टिकल टेक्स्ट, ठीक है. और he was the first mathematician to provide the formula for the area of a cyclic quadrilateral. जो cyclic quadrilaterals होते हैं उनका एरिया देने के he was the first first mathematician in the world, ठीक है. So इस इनमें we just need to remember his key works. क्या क्या थे? एक तो ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत, इट इज रिलेटेड टू हिज नेम, सो इट दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है. उसके बाद में है खंड खड्याक, ठीक है. तो खंड खंड मतलब सेक्टर, सेक्शन. खंड हिंदी वर्ड है फॉर सेक्टर और सेक्शन, ठीक है. तो इसको लर्न वैसे कर लेंगे कि उन्होंने एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स निकालना बताया था. सिमिलरली जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो सेक्शन होता है उसका एरिया भी इनके फॉर्मूलाज के थ्रू निकाला जा सकता था, ठीक है. तो सेक्टर या सेक्शन मतलब खंड, पार्ट है ना. तो खंड खड्याक. सो दैट इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर दिस, ठीक है. वो लर्निंग एड है ये बेसिकली, के खंड एरिया सेक्टर से यू कैन लिंक एंड रिमेंबर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 का है, ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय होम. So the answer for this is that this is not known. Even though it was an Indian, exact details या उनका नाम किसी को भी पता नहीं है who had actually invented zero, ठीक है. While it is often attributed to Aryabhatta in popular culture, the specific exam देखो असली में this scholar was unknown, ठीक है. It was not Aryabhatta who had invented zero, ठीक है. And this is in fact considered to be the most fundamental contribution of ancient India to the progress of civilization in the progress of civilization, ठीक है. तो पूरा जो decimal system है ना, decimal system is based upon the invention of zero, है ना. and zero was invented by an unknown Indian, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1996. Which नहीं, who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? So this is a very simple question. The answer will be D, सुश्रुत, ठीक है. सुश्रुत का आपको पता होगा, he was the first Indian surgeon and he is also considered to be the father of Indian medicine, ठीक है. उनका फेमस वर्क क्या था? सुश्रुत संहिता. Although he likely practiced earlier, 5th century BC के अराउंड करते थे वो प्रैक्टिस, he is regarded as the preeminent medical figure studied during the Gupta golden age, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. We have to match the persons with their respective fields. So again this is a fairly simple question. 1996 का है. क्या क्या नाम दिया है? विशाखदत्त, वरामिहिर, चरक एंड ब्रह्मगुप्त.
ठीक है, तो विशाखदत्त हमें पता है कि ही यूज्ड टू राइट ड्रामास। ठीक है, नॉवेल्स एंड ड्रामास लिखते थे वो। वेट अ सेकेंड, हाँ। ठीक है, और उनकी फेमस वर्क्स क्या थे? एक तो मुद्र राक्षसा, एंड द सेकेंड वन वाज देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। और ये आप एक चीज याद रखना, हम लोग सुश्रुत को वी यूजुअली थिंक के उनको गुप्ता पीरियड में ही माइट हैव बीन alive during the Gupta period, but that is wrong. सुश्रुत was present 500 BC के अराउंड। ठीक है, उनका पर वो जो वर्क था सुश्रुत संहिता, दैट बिकेम prominent ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हाउएवर वो तो पहले ही 5th सेंचुरी BC, 500 BC, 600 BC उस टाइम के थे वो। ठीक है, कोई कोई सोर्सेज में दिया है कि ही वॉज बोर्न समवेयर अराउंड 800 BC एंड ही डाइड इन 700 BC। ठीक है, तो वैदिक टाइम्स उन टाइम्स के कहीं पे है ये। He was not there during the Gupta period. ठीक है, however his book सुश्रुत संहिता became prominent during the Gupta period. इसमें हम लोग कर रहे थे विशाख दत्त, वी हैव रेड की, मतलब वी नो के मुद्रा राक्षस लिखा है उन्होंने, देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। दीज बोथ वर इम्पोर्टेंट ड्रामास। ठीक है, उसके बाद वाराह मिहिर। तो वाराह मिहिर वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, उनका एक फेमस वर्क था पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका मतलब 5 सिद्धांत प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो वाराह मिहिर, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? वाराह मिहिर, वाराह मतलब बड़ा, बड़ा से आप लिंक कर सकते हैं इसको। तो वो यूनिवर्स के बारे में, और एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू यूनिवर्स। ठीक है, तो बड़ा को भी आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि वाराह मिहिर टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते थे, यूनिवर्स के बारे में। और हम किसी को, वी हैव टू शो कि कोई बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे पूरे हाथ पाम दिखा के बताते हैं ना कि हम बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो पाम में कितने 5 फिंगर्स होते हैं, सो उससे पंच सिद्धांतिका लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, वरा मिहिर बड़ा, बड़ा मतलब यूनिवर्स की बात हो रही है ना। एंड बड़ा को हम लोग ऐसे 5 फिंगर्स दिखा के कि बड़ा बड़ा चीज़ है, तो 5 फिंगर्स से पंच सिद्धांतिका यू कैन रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट चरक। चरक वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन एंड उनका फेमस वर्क था चरक संहिता। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, वेरी प्रोमिनेंट वर्क रिटन बाय हिम। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंपल वर्ड है। ब्रह्मगुप्ता देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्ता वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन। ठीक है, और बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। In Sanskrit plays written during the Gupta period, women and Shudras speak which language? 1995 का क्वेश्चन है। सो द आंसर फॉर दिस इज प्राकृत। ठीक है, असली में क्या हुआ था? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वुमेन हैड टेकन अ बैक सीट, मतलब वुमेन को, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हायरार्किकल डिवीजन इन द सोसाइटी। तो वुमेन को इंफीरियर मानते थे एज कंपेयर टू मेन, एंड दे वर प्लेस्ड एट द सेम लेवल एज शूद्रास। इवन द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, देयर वाज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी एज वेल। therefore women शूद्रास all of these were considered to be at the same level। और उनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, है ना। so that is why they used to speak prakrit, whereas the elites and high class men they used to speak sanskrit। ठीक है, they were educated, they were speaking Sanskrit, whereas normal commoners as well as women, Shudras, everyone else was speaking Prakrit. ठीक है, and the scholar Andrew Olet, he traces the origin of Sanskrit Kavya to Prakrit poems. ठीक है, however in stage plays Prakrit denoted lower social status compared to Sanskrit.
ठीक है, तो whoever used to speak संस्कृत usually used to belong the higher classes, और बाकी बाकी लोगों को प्राकृत बोलना होता था। ठीक है, और ये आप याद रखना, दिस इज अ फेयरली इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये जो संस्कृत काव्य है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राकृत इटसेल्फ। प्राकृत की जो पोएम्स है ना, उसी से ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत का पोएम्स। काव्य भी बोल सकते हैं। एंड हु हैड डिस्कवर्ड दिस? ये फैक्ट किसने बताया था कि ऐसा हो रहा है? दिस फैक्ट वाज टोल्ड बाय एंड्रू ओलेट। ठीक है, ओलेट। तो इसको ऐसे लर्न कर लो, ओ ओ संस्कृत तो प्राकृत से डिराइव हुआ है, ऐसे ओ संस्कृत, ऐसे करके यू विल बी एबल टू रिमेम्बर ओलेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन, 24 या 25 का है, if I'm not wrong. Fahim, the Chinese pilgrim, traveled to India during the reign of which of the following rulers? So again, this is a very simple question. The answer will be Chandragupta II. ठीक है, so Chandragupta II was also known as Vikram Aditya, है ना। um, उनके रेन में फाहिन had come to India, and क्या era था? This represented the high watermark of the Gupta Empire. So when the Gupta Empire was at its finest, सबसे it was at its peak या zenith, है ना, तब आए थे इंडिया में फाहीन। ठीक है, he came to India searching for Buddhist texts. ठीक है, and he had come to Ujjain. He had visited Ujjain also, and there were numerous scholars who adorned the court at Ujjain. ठीक है, so this is very important. Fahim had visited India during Chandragupta II's reign. ठीक है, next question देखते हैं। The silver coins issued by Guptas were called which of the following? So the answer for this is Rupka. ठीक है, रुपया से रुपका, you will be able to connect रुपया या रूपी से, है ना। सिल्वर कॉइन को रुपका बोलते थे, एंड जो साकास थे उज्जैनी के, वो लोग भी यही चीज़ बोलते थे सिल्वर कॉइन्स को। ठीक है, एंड द वेट ऑफ द सिल्वर कॉइन वाज अराउंड 32 to 36 ग्रेन्स। उस टाइम पे ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, दिस वाज नॉट इन वोग, रादर दे यूज्ड टू मेजर बाय ग्रेन्स। जो हमारे कोई भी फूड ग्रेन्स होते हैं ना, उससे कंपेयर करके दे यूज टू मेजर द वेट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेट्स वर नॉट देयर एट दैट टाइम, दे वर नॉट वेरी प्रेवलेंट। नॉर्मल ग्रेन्स वगैरह से कंपेयर करते थे, तो 32 to 36 ग्रेन्स के इक्विवेलेंट था 1 रुपका, विच वॉज अ सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट है गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन को वो लोग दिनार बोलते थे, है ना। So this is also commonly known. I don't think you'll require a learning aid for this. However, if you require some memory connection to learn this, ये कर सकते हैं कि देखो, गोल्ड कमाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ डेज, है ना, काफ़ी दिन काम करना पड़ता है, तब जाके you'll be able to earn a gold coin. ठीक है, तो दिनार, ठीक है, उससे you can connect and learn this. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? 1999 का क्वेश्चन है। The options are तमरालिप्ति, ब्रोच, कल्याण एंड कैम्बे। हमें नॉर्थ इंडियन ट्रेड के बारे में बताना है कि नॉर्थ इंडियन ट्रेड को कौन से पोर्ट ने हैंडल किया था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो द आंसर फॉर दिस विल बी तमरालिप्ति। ठीक है, तमरालिप्ति पोर्ट प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है ये। इट इज़ नियर रूपनारायणा रिवर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? इट वॉज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द मॉडर्न ट्रेड रूट फॉर द साउथ एंड साउथ ईस्ट।
ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरली साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करते थे इस रूट से, एंड नॉर्थ इंडिया यूज टू ट्रेड वाया दिस रूट। ठीक है, नॉर्थ इंडियन ट्रेड यूज टू हैपन वाया दिस रूट एंड दे यूज टू ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो तमरा लिप्ति को लर्न, वील ट्राई टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है, रूप नारायणा रिवर के अलॉन्ग। इसके लिए मैं लर्निंग एड या मेमोरी कनेक्शन दे देती हूँ आपको। लर्निंग एड देखो, नॉर्थ इंडियंस को टोमेटोज पसंद है, ऐसे लर्न करने के लिए मैं बोल रही हूँ, दे लाइक अ लॉट ऑफ टोमेटोज। ठीक है, तो टोमेटोज से तमरा, यू कैन लिंक एंड लर्न दिस टमाटर, तमरा, टोमेटो। ठीक है, एंड अगर वी हैव टू बाय टोमेटोज कहीं पे भी जाके, सो वी फर्स्ट लुक एट इट्स फिजिकल अपीयरेंस के, सही दिख रहा है कि नहीं, है ना, कुछ डेंट वगैरह तो नहीं है उस पर। सो उससे रूप, उसका रूप हम लोग चेक करते हैं, है ना, रूप नारायणा, उससे रूप नारायणा रिवर यू विल बी एबल टू लिंक एंड रिमेंबर। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियंस टोमेटो से तमरा और रूप नारायणा रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है ये। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासला, Kadura and Chaul were known as which of the following? So the answer for this is they were all ports, ports handling foreign trade. ठीक है, तो क्या क्या टाउन है? घंटासला, Kadura and Chaul, these all were port towns. ठीक है, तो ईस्टर्न देखो, दो कोस्ट है हमारे, है ना, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे क्या क्या पोर्ट्स हैं? तमरालिप्ति है, घंटासला है, कडूरा है ना। और वेस्टर्न कोस्ट पे क्या क्या है? ब्रोच, चौल, कल्याण, कैम्बे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से किस से करते थे ट्रेड? साउथ ईस्ट एशिया से। और वेस्टर्न कोस्ट वी यूज्ड टू ट्रेड विद रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया ऑल्सो। ठीक है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे तमरालिप्ति है वेस्ट बंगाल साइड में, फिर घंटासला एंड कडूरा, देन यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे ब्रोच, चौल, कल्याण एंड कैम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2000, ईयर 2000। द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली फ्यूडल सिस्टम होता है कि अ, कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन में देयर इज़ नॉट अ सिंगल आर्मी। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे हमारे अभी होता है इंडिया है एंड देयर इज एन इंडियन आर्मी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता था, एक कोई भी रूलर रहेगा और बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स या लैंडलॉर्ड्स रहेंगे। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड्स का क्या काम था? दे यूज टू ओन लैंड, है ना, एंड दे यूज टू हैव आर्मीज ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो अपनी अपनी आर्मी होती थी हर लैंडलॉर्ड या हर फ्यूडल लॉर्ड के पास में। दे यूज टू हैव देयर ओन आर्मी। सो वेन एवर दिस किंग यूज टू कॉल देम, दीज पीपल यूज टू सेंड देयर आर्मीज। ठीक है, तो वो लोग अपनी आर्मीज मेंटेन करते थे, अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल आर्मीज थी। दिस इज नोन एज द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में भी था फ्यूडल सिस्टम एंड इट कैन बी ट्रेस्ड टू द मिलिट्री कैंपेन्स। रीजनिंग क्या दिया है? देयर वॉज considerable expansion of the feudal system during the Gupta period. So this is also correct. ठीक है, both A and R are true. ठीक है, so feudal lords used to provide help to the central leadership by providing army. ठीक है, and in return they used to get grants of land. तो इन्होंने आर्मी प्रोवाइड करा और हेल्प्ड द किंग, और उसके बाद में दे यूज टू गेट मोर लैंड। ठीक है, और फ्यूडल लॉर्ड जो ये वाला पर्सन है, इसको क्या बोलते थे वो लोग? सामंता। ठीक है, सामंता या फ्यूडल लॉर्ड या सब्जुगेटेड रूलर, सामंत, सामंत बोलते थे, है ना, दिस पर्सन इज सामंत। और इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, फ्यूडल लॉर्ड किससे रिलेटेड है? आर्मी वगैरह से रिलेटेड है, तो हमारा उसको लिंक कर लो सैम मानेकशॉ से। ठीक है, बस मैं लिंक करने के लिए बता रही हूँ आपको, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस, दिस इज ओनली ए लर्निंग एड।
ठीक है। तो सैम मॉनिक्शा तो सामंत, सैम सामंत, ठीक है, वैसे लोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 का क्वेश्चन है ये। With reference to forced labor, which is Vishti, in India during the Gupta period, which one of the following statements is correct? It was considered as a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. So this is correct. ठीक है, forced labor को it was seen as a source of income and also a sort of tax. ठीक है, गुप्ता पीरियड में फोर्स लेबर होता था और उसको बोलते क्या थे, विष्टि। ये आप याद रखना कि दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विष्टि मतलब फोर्स लेबर। इसको लर्न कैसे करेंगे? विश, विश मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड विश का मतलब होता है पॉइजन। सो फोर्स्ड लेबर इज लाइक पॉइजन, है ना? ऐसे किसी को नहीं पसंद फोर्स्ड लेबर करना, ठीक है, तो पॉइजन जैसा है। सो यू विल बी एबल टू लिंक दिस एंड रिमेंबर। ठीक है, विश टी, विश टी मतलब पॉइजन जैसी जो चीज़ है, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। मतलब नहीं ये होता है इसका, आई एम जस्ट गिविंग यू अ लर्निंग एड। ठीक है, it was considered as a source of income for the state and a sort of tax. Villagers were subjected to vishti to serve the royal army and the officials. So it was treated as a tax and was not considered to be wage labor. मतलब कि wages नहीं मिलते थे इस चीज़ को करने के लिए, rather it was only forced labor. ठीक है, टैक्स के टाइम चीज़ थी वो। So you it was compulsory for the villagers to serve the royal officials. ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my telegram channel for any updates. Thank you.